लेट्स सी स्टार्ट अला। ओके तो क्या कर रहे थे? हाँ, पैरामीट्रिक अच्छा, तो पैरामीट्रिक फंक्शंस में वी सॉ इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डिपेंड्स ऑन अ थर्ड वेरिएबल हाउ टू डिफरेंशिएट इट। उसका दो पार्ट है, वो एक क्वेश्चन पार्ट हो गया था ना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएटिंग समथिंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। उसी कॉन्सेप्ट से एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, ठीक है। So these are the three example questions. Differentiating a given function with respect to another function. इसको कैसे करेंगे? इसको भी वही पैरामीट्रिक फॉर्म से ही करना है। How to do? We'll assume this function as something and we'll assume this function as another thing. जैसे कि we can assume let p is equals to x cube by 1 minus x cube और ये दूसरा फंक्शन x cube है, उसको assume करेंगे q is equal to x cube. Now we are asked to find differentiate this with respect to this. Differentiating x cube by 1 minus x cube with respect to x cube means, in short, it is asked differentiate p with respect to q. Differentiate p with respect to q, and differentiating p with respect to q means dp by dq. जैसे कि differentiation of y with respect to x is dy by dx. Differentiation of p with respect to q is what? dp by dq. Now we know dp by dq can be written as dp by dx from parametric form. Parametric form में पढ़े थे dp by dx divided by dq by dx. So करना क्या? वही चीज करना है, differentiating p with respect to x, then again differentiating q with respect to x, then dividing both, we'll get differentiation of p with respect to x with respect to q. So therefore यहाँ से अभी differentiate करना p का दो x this is dp by dx we have to find. dp by dx कैसा होगा? Now see this you now this one is आपका डिवीजन रूल में है, तो डिवीजन रूल लगाएंगे। What you will write 1 minus x cube का होल स्क्वायर, ऊपर में 1 minus x cube, फर्दर x cube का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस x cube रहेगा, और 1 minus x cube का डिफरेंशिएशन इज 0 minus 3x स्क्वायर। ओके, सॉल्व इट। आई थिंक हमको कुछ मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? हमको 3x स्क्वायर, ये ऐसा कुछ होगा 1 minus x cube into 3x स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस x cube into 3x स्क्वायर, करेक्ट। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई माइनस x cube into 3x स्क्वायर प्लस x cube into 3x स्क्वायर, वो कैंसिल हो गए, ओनली 3x स्क्वायर विल रिमेन डिवाइडेड बाय, अच्छा रुको एक मिनट, नीचे वाला भूल गया, whole square. Now see this is after multiplying and doing everything, we'll get 3x square whole divided by 1 minus x cube का whole square. This is dp by dx. Okay. Similarly, we can calculate dq by dx, which is very easy actually. यहाँ पे कर दे रहा हूँ directly. dq by dx. dq by dx is a simple thing. x cube का differentiation 3x square. ठीक है? Now finally, it is asked to find dp by dq. Now what is dp by dq? dp by dq is dp by dx divided by dq by dx. So dp by dx is how much? अभी निकला था ये वाला dp by dx. 3x square whole divided by 1 minus x cubes whole square divided by 3x square, मतलब multiplication of 1 by 3x. 3x square will cancel out. We'll get 1 by 1 minus x cube का whole square. ठीक है, दिस इज योर आंसर। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। कपड़ा किधर गया? कपड़ा को तो हमने फेंक दिया था। जल्दी ला, टाइम नहीं। इधर पूछता हूँ। कपड़ा वाले को पूछी। क्वेश्चन नंबर 2 ए अच्छे मिल ला। Question number 2. We'll write let p is equals to sec inverse 1 by 2x square minus 1 and q is equals to root over of 1 minus x का square. Okay, and we have to differentiate with at x is equals to 1 by 2. The same thing, find dp by dq at x is equal to 1 by 2 differentiate. इसको क्या छोटा कर सकते हैं?
क्या जा सकता है? सी वी कैन डायरेक्टली डिफरेंशिएट इट और एल्स वी कैन टेक अ सब्स्टिट्यूशन जो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो दो पार्ट कर देते हैं। सी लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा, ठीक है? what I have done, let x is equals to cos theta. Now see, this will become E is equals to sec inverse 1 by 2 cos square theta minus 1. Okay. Now see, this is coming out to be P is equals to sec inverse 1 by 2 cos square theta minus 1 cos 2 theta. Now sec inverse 1 by cos 2 theta is sec 2 theta. Sec inverse cancels out, so we are getting out only 2 theta. Now see, P is equals to 2, theta is what? Cos inverse x. Okay, P छोटा हो गया, 2 is 2 cos inverse x. Similarly, Q को भी कर लेते हैं। ये Q को नहीं चाहिए होगा, क्यों करें Q को? वो डायरेक्टली कर सकते हैं, easy है। Now we'll find dp by dx. dp by dx is equals to 2 cos inverse x, derivative minus 2 by root over of 1 minus x plus y. अब इसको डायरेक्टली क्या कर लेंगे? dq by dx निकालते हैं, तो कट जाएगा। dq by dx is equals to root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x, तो root 1 minus x square का डेरिवेटिव 1 by 2 root 1 minus x square। फर्दर चेन रूल के हिसाब से 1 का डेरिवेटिव 0, minus x square का डेरिवेटिव minus 2x. Okay, so minus this 2 and 2 cancels out. I am getting minus x by root over of 1 minus x का square. Now we need to find dp by dq. So dp by dq is equals to this particular thing divided by this particular thing. So this is minus 2 by root over of 1 minus x का square divided by multiply root 1 minus x square whole minus x. This cancels out. और क्या होगा? ठीक है ना सर? माइनस माइनस कैंसल्स आउट, सो वी आर गेटिंग 2 by x. Now we have to find the derivative at x is equals to 1 by 2. So therefore dp by dq at x is equals to 1 by 2 is 2 by 1 by 2 which is equal to 4. इसका आंसर कितना आ गया? 4. मैं थोड़ा चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। ऐसा सही होगा, हमने तो किया सही होगा, 4 है, ठीक है? Then question number 3 देखो अपना 3 number. See, we have differentiated this particular thing with respect to sin inverse 2x into root over 1 minus x का square. तो वही चीज है, let p is equals to tan inverse x by root over of 1 minus x का square and q is equals to sin inverse 2x into root over of 1 minus x का square. Okay. Now same thing we will do dp by dx. लेकिन अगर देखो डायरेक्टली dp by dx करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा ना, tan inverse कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और इनवर्स फंक्शन के अंदर अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग अ सुइटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिया जाए? मेरे ख्याल से तो 1 minus x square का रूट है, मतलब वी कैन टेक sin थीटा। cos भी ले सकते हो लेकिन sin ज्यादा बेहतर होगा, क्यों? देख लो, let x is equal to sin theta. So we'll get p is equals to tan inverse, this is sin theta by root over of 1 minus sin square theta. अब root over of 1 minus sin square theta होता है cos square theta. cos square theta का रूट होता है cos theta. So we'll get tan inverse sin theta whole divided by cos theta. Now this is simple one, tan inverse tan theta, correct? So which will come out to be just theta. And what is theta? Sin inverse x. Now dp by dx निकालना था, so this is dp by dx is equals to sin inverse x का डिफरेंशिएशन root 1 by root over of 1 minus x का स्क्वायर, खत्म। ओके, नहीं तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, sin inverse x का फॉर्मूला tan inverse x root over 1 minus x स्क्वायर होता है। मेरे को खुद को याद नहीं था, तो बेहतर होगा सब्स्टिट्यूशन लेना है। देन यहाँ पे इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे? सी, लेट
x इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ साइन फाइव, यहाँ पे दूसरा क्यू ले, साइन यहाँ पे थीटा लिए थे, यहाँ पे फाइव ले लो, लेट x इज इक्वल्स टू साइन फाइव। नाउ q विल बी साइन इनवर्स 2 साइन फाइव इंटू वही चीज है ना, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, क्या बनेगा वो cos फाइव, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा cos फाइव। अभी तो फॉर्मूला होता है 2 साइन फाइव cos फाइव साइन 2 फाइव, दिस विल बी साइन इनवर्स साइन 2 फाइव। Now sin inverse sin cancels out, we are getting only 2 5 which is 2 sin inverse x, ठीक है। अब फिर से क्या करोगे, dq by dx। Now dq by dx will be 2 तो कांस्टेंट रहेगा, sin inverse इसका डिफरेंशिएशन 1 by root over of 1 minus x का square। Now final step, dp by dq is division of dp by dx with dq by dx। So this is 1 by root over of 1 minus x square into root over of 1 minus x square divided by 2. This cancels out. So final answer is 1 by 2. Constant आता है, ठीक है। वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे खत्म होता है, सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक है, एक छोटा सा सब टॉपिक है, डिटरमिन डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, लास्ट में बताएंगे। Now the last main topic of this chapter, जहाँ से क्वेश्चन 100% will come, 100% एक क्वेश्चन तो आता ही है, वो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, मेनी ऑर्डर एक्चुअली, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सो ऑन एंड ऑन चलता रहता है। लेकिन इन योर स्कूल लेवल सिलेबस ओनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज देयर, ओके, ओनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मे बी कभी मे बी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ सकता है, लेकिन 99.9% times it won't come, only second order derivative, okay। तो क्या है second order derivative, उसको थोड़ा देखते हैं। उससे पहले थोड़ा टाइम बोर्ड जल्दी काट दो। कितना टाइम आज? 8 मिनट 7 मिनट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स, फिजिक्स में बताया था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस। एक फंक्शन होगा, उसको अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर लोगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है। जैसे कि let us consider a function y is equal to fx. Let us consider a function y is equal to fx. Now first order derivative को हम लोग बोलते हैं dy by dx या फिर f dash x, ठीक है, छोटा लिखता हूँ, f dash x या फिर y डैश या फिर y1, ठीक है। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का 4 नोमेनक्लेचर है। इधर यू कैन राइट, मतलब y इज इक्वल टू fx इफ इट इज अ फंक्शन, देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, हम लोग इसको dy by dx लिख सकते हैं, या फिर f dash x लिख सकते हैं, या फिर y dash लिख सकते हैं, या फिर y1 लिख सकते हैं। Similarly, second order derivative को हम लिख सकते हैं d2y by dx square। इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, d square y by dx square नहीं, इसको प्रोनाउंस करते हैं d2y by dx square, लेकिन मेरा एक्चुअली आदत है d square y by dx square बोल देना, लेकिन करेक्ट थिंग इज d2y by dx square, ठीक है। बोलने से क्या है, कोई तो सुनेगा नहीं, लिखना है ना d2y by dx square। Now this is f dash x, तो यहाँ पे लिखोगे f double dash x। f double dash x means you have differentiated 2 times, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हो y double dash, या फिर y2, नीचे 2 होगा, इस तरह रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली अगर थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, we can write is d cube y by dx cube। एक्चुअली d क्यूब नहीं, देखो गलती आदत है, d3y by dx cube, d2y by dx square, नीचे स्क्वायर क्यूब बोलोगे, ठीक है, और ऊपर में 3 नंबर होता है, d3y by dx cube। इसको f ट्रिपल डैश x, y ट्रिपल डैश, या फिर y3, ओके। सिमिलरली ऐसे करते करते जाएंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव
पहले बोर्ड्स में nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी सिलेबस में हुआ करता था, हम लोग भी नहीं किया, हम लोग का सीनियर लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी चला अगर माने dny/dx to the power n, वो थोड़ा दिमाग खराब करने वाला चीज है, ठीक है, वो अच्छा हुआ गया। तो we can write this as dny/dx to the power n, ओके, एंड इसको हम लिख सकते हैं fnx, n मतलब पावर नहीं है, n बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसे yn y to the power n, इसको हम नहीं लिखते शायद ऐसा, इसको छोड़ दो, ऐसे लिखते हैं yn, ये वाला को छोड़ देना नीचे yn, ओके, इसका मतलब n बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो ये सब हो गया रिप्रेजेंटेशन, तुम्हारे सिलेबस में ये सब कुछ नहीं है, ओनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज देयर मेजर, ओके। और एक चीज है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, सेकंड ऑर्डर हो या एनी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, if first order derivative of a function exists, then it does not mean its higher order, second order में any higher order higher order derivatives, ठीक है, in general if first order derivative of a function exists, then it does not mean its higher order derivatives will exist। इसका मतलब है मान लो फंक्शन है, उसको हमने डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया और वो एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स एग्जिस्ट। नाउ if we differentiate it second time, that derivative may exist, may not exist। ऐसा नहीं बोल सकते कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स डिफाइंड, मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर एनी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज आल्सो डिफाइंड। नो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है मतलब सेकंड ऑर्डर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अलग सा रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हाँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालते हैं। कैसे, देखो यही है, एक तरह में ब्लैक से कि इफ यू आर फाइंडिंग आउट d square y by dx square, it actually means d by dx of dy by dx। फॉर्मूला ही d square y by dx square निकालने का फॉर्मूला है, पहले dy by dx निकालो, जो आया फिर उसको फिर से डिफरेंशिएट करो, dy by dx निकाल दिया, फिर वो चीज को फिर से विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, देन यू विल गेट d square by dx square। Similarly, if I want to find d cube y by dx cube, this will be what? d by dx of whom? d2y by dx square, okay। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, फिर सेकंड ऑर्डर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको थर्ड ऑर्डर मिलेगा, फोर्थ ऑर्डर के लिए थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करो तो फोर्थ ऑर्डर मिलता है, ऐसा चलता रहता है। तो एक फंक्शन को अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट कर लोगे, देन यू विल गेट another डेरिवेटिव। तो यही है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तुम्हारा इसकी वाला ही फॉर्मूला है, ओनली दिस विल बी अप्लाइड एंड बाकी क्वेश्चन प्रूफ ही करना है, सिंपल था, ओके। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर, एग्जांपल कुछ कितने मिनट, ओके। log sin x का एग्जांपल भागते हैं, हाँ, let y is equals to log sin x लगे sin log x, y is equals to sin log x। इसका d square y, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने कैसे करेंगे, सी फर्स्ट विल फाइंड dy by dx, sin का डेरिवेटिव cos log x, फर्दर log x का डेरिवेटिव 1 by x, means this is coming out to be cos log x divided by x। कैसे, चेन रूल से, पहले sin का फिर log का, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, d square y by d2y by dx square, this is what, this is डेरिवेटिव ऑफ dy by dx। नो, dy by dx इज दिस फंक्शन, इसको फिर से डेरिवेटिव करना है, तो ये तो चेन रूल में, ये तो डिवीजन रूल में आ गया, समथिंग बाय समथिंग है, तो डिवीजन रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x, फर्दर log x का डेरिवेटिव 1 by x, फिर माइनस cos log x रहेगा एंड
डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव जो कि है 1. ओके, नाउ योर फाइनल आंसर x cancels.